علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہربک کو آپ ناراض تو نہیں ہے نا سمی جی؟ عالم کے جانے پر سمی جب حور کو سوتے ہوئے دیکھ کر واپس نیچے آ رہی تھی، اچانک جم سے پسینہ صاف کرتے نکلتا عارف اس کے رستے میں آ گیا۔ وہ بکھلائی، پھر اسے پسینے سے بھیگی شرٹ دے کر سٹ پٹائی، دوسرے پر اس کی باتوں کا سوچتی غصے سے گور کر دوسری طرف سے جانے لگی۔ دیکھو دماغ سے آ رہی، میں نے تمہاری ان واہیات حرکتوں کا عالم سے ذکر نہیں کیا، نہیں تو لاتیں مار کر باہر نکالے گا، اس لیے اپنی زندگی کے لیے بہتری چاہتے ہو تو باز آ جاؤ۔ وہ غصے سے تندو تیکھے لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ عارف کی نظروں کے سامنے تو بس اس کے سوٹ کی ہم رنگ چوڑیاں بلو کلر کی گھوم رہی تھیں۔ کیا اعلیٰ انداز ہے الغصے کا میری المسوم سمی جی۔ وہ ٹھنڈی آبرتا بھاگتا اس کے پیچھے آیا۔ دیکھیے لات میں سہ لوں گا، پر آپ بس یوں ہی مجھ پر غصہ کرتی رہا کریں۔ اس کے ہمدم ہوتے ہی وہ التجائیہ بولا۔ سمی کا دماغ گھوم گیا، وہ رکی اور غصے کی تپش سے سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کو معلوم ہے آپ 200 سال جئیں گی؟ وہ خوشی سے چہک کر بولا اور تولیے سے گردن کا پسینہ صاف کیا۔ کیسے؟ وہ پوچھ کر لب بھیج گئی اس کے لبوں پر کھلتی شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر۔ کیونکہ میں ابھی جم میں آپ کے بارے میں 2 باتیں سوچ رہا تھا کہ آپ سامنے آ گئیں، اس سے آپ 200 سال لمبی زندگی میرے ساتھ رہیں گی، اس نے خوشی سے بتایا۔ سمی نے سب سے گہرا سانس بھرا۔ او، اب تک اس کا مذاق جھیلتی آئی تھی، پر اب حد سے سوا تھا تو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی یہ بکواس۔ دیکھو بیٹے تم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معافی۔ کیا بول رہی ہیں سمی جی؟ آپ سیدھا لاتیں مار لے، پر یہ تو نہ کہیں آپ میرے جذباتوں کی ناقدری کر رہی ہیں، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں ہے۔ وہ دہل کر اس صفادات پر بکھلایا یا بولا کہ سمی کا دماغ جھنجھلا گیا۔ چٹاخ، تم ایک بدتمیز لڑکے ہو، سدھر جاؤ ورنہ میں سچ میں عالم کو بتا دوں گی۔ اس کی امید کے بدلے آج پھر چانٹا ملا تھا۔ وہ محبت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب موبائل رنگ ہوا۔ کیا مارتی ہے ظالم، پر مارنے یا نہ مارنے پیار تو آپ کو مجھ سے ہی کرنا ہے سمی جی، ورنہ میری ایک دفعہ خواہش کرنے پر آپ مجھ پہ یوں محبت سے آرینا کہہ کر پکارتی۔ گنگناتا وہ تولیہ لہراتے اندر کی سمت بڑھا۔ مجھے آپ کام سے جانا ہے، میں جاؤں؟ رمشا حور کے سونے پر عارف سے پوچھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ عارف نے گھور کر گڑبڑا گئی۔ کچھ شاپنگ کرنی ہے پرسنل، اس نے ہچکچاہٹ کے بعد جھجکتے کہا۔ وہ لب بھیج گیا۔ اوکے لسٹ بنا دو، مل جائیں گی۔ وہ اس کی ویران اوشن نیلی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ رمشا نے نظریں چرائی۔ مجھے خود اپنی چیزیں لینی ہے، اب اجازت دے مجھے۔ اب کی بار جھنجھلا کر غصے سے بولی۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ اس کا ہٹ دھمی بھرا لہجہ عارف کو غصہ دلا گیا، تبھی تیز مسخرے بھری نظروں سے اسے گھورتے آبرو اٹھائی۔ رمشا نے ہراساں ہو کر اس کے نرم مزاج والے ہنستے مسکراتے چہرے کے یکسر بدلتے تاثرات دیکھے، قدم پیچھے لیا۔ عارف بھی شاید اس کی نیلی پھیلی آنکھوں کی نمی دیکھ چکا تھا، تبھی خود کو ملامت کی۔ اچھا رکو، جاؤ، پر میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ ہوگا، تم اپنی گاڑی میں نہیں ہماری گاڑی میں جاؤ گی۔ اس قدر نرم لہجے پر وہ خود کو سنبھالتی سر ہلا گئی، ورنہ عالم کے ایک بار پھر انکار سے اس نے دل توڑ دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا اگر عالم جیسا شخص اس کی زندگی میں آئے گا تو ہر غم ختم ہو جائے گا، پر شاید ابھی بہت اذیتیں لکھی تھی۔ بچپن میں ایکسیڈنٹ میں ماں باپ کا چھوڑ جانا، پھر ماما مامی کی اگنورنس، اپنے بچوں پر توجہ، اس کا اکیلے کے لیے چھپ کر گھٹ گھٹ کر جینا، پھر ایسے ہی ڈاکٹر کی تعلیم لیتی۔ وہ اپنی ویران زندگی میں گم تھی کہ زندگی میں جیسے بہار سی آگے جب نظریں بے ساختہ اس مغرور بے نیاز بری آنکھوں والے دراز قامت باڈی بلڈر سے عالم کو دیکھا تھا، کانوں میں لگے بلوٹوتھ پر مدھم آواز میں باتیں کرتا، آس پاس کے ماحول سے بے لاپرواہ بے نیاز اپنے سحر انگیز شخصیت سے انجان جاگنگ کرتا، اسے دل کی تاروں کو چھیڑ گیا۔ زندگی جیسے گنگنا اٹھی، اس کے گرد تتلیاں گھوم گئیں، پر جلد ہی ان پر اوس پڑ گئی۔ جب ان انسان نے اسے آنکھیں نکالے کہا تھا، وہ اس سے بھی گریز نہ کرتی، پر اس کا غائب ہو جانا، جاگنگ پر عرصے نہ آنا، اور ایک دن سے شاپنگ مال میں خوبصورت غیر معمولی حسن کی مالک دھان پان سی لڑکی کے ساتھ اس کے نخرے اٹھاتے دیکھنا، تبھی زندگی میں پہلی بار دل چاہتا سوسائڈ کر لے۔ ویسے بھی پیچھے کون تھا اس کا رونے والا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ ماما مامی اور ان کی نخریلی بیٹیاں تھیں جو خوش ہوتی اگر وہ سوسائڈ کر لے، کیونکہ پھر تو اس کی جائیداد انہی کے نام ہو جاتی۔ بیک وقت اسے اپنی قسمت اور بدقسمتی پر رونا آیا۔
वो आरिफ को साकित छोड़कर मुंह पर हाथ रखती वहां से भाग गई, जबकि वो पीछे अरे ओए बहन डॉक्टर नहीं करता रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है वहां से कुछ भी सबूत हासिल करना, रिमशा ने परेशानी से पास खड़े स्याह कैप में मौजूद बुरहान को कहा। इसने तेज नजरों से घूरा। तो फिर क्यों आई थी मेरे पास कि मेरी मदद करो बेस्ट के खिलाफ सबूत हासिल करने में? मैंने तुम इसके हॉस्पिटल में जॉब दिलवाई जहां से वो अपनी बहन के लिए डॉक्टर्स बुलवाता है, और तुम इसके घर में बसेरा पाकर अब मुकर रही हो मिस रिमशा। वो नीचे लहजे में घुर्राया, वरना बस नहीं चल रहा था इतने करीब आकर इस लड़की के धोखेबाजी पर इसे शूट कर दे। देखो मैंने पूरी कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाई, बस इतना मालूम पड़ा कि बेस्ट कोई और नहीं सईद आलम ही है, और कोई किंग का आदमी था पहले और अब इसे वो मारना चाहता है। कोई कहर जमान भी है, शायद रईस जमान नाम से जानता है। इसे डरते डरते इतने दिनों से हासिल की गई सईद के खिलाफ मालूमात बुरहान तक पहुंचाई। वो चौंक गया रईस जमान। इसके दिमाग में धमाका हुआ। वो रईस जमान की मीटिंग याद आई जब वो हुरुलैन को ब्लाइंड ब्यूटी कहकर बुला रहा था, और फिर इस पर अटैक किंग, क्या ब्लैक किंग? इसने दहशतगर्द का नाम लिया। हाँ वही ब्लैक किंग नाम है पूरा। रिमशा अपनी मतलूबा चीजें लेती सर हिला गई। सईद का इस दहशतगर्द से क्या ताल्लुक? अगर इससे ताल्लुक है तो हुरुलैन का इनसे क्या ताल्लुक? वो उलझ गया पूरा, तभी कुछ भी कहे बगैर वहां से निकलता चला गया। रिमशा इसके यूं चले जाने पर शशतर खड़ी रह गई। कहीं ये सब जानकर एसीपी की मदद करके मैंने अपनी मौत को खुद दावत तो नहीं दी? खौफ से फेद पड़ती वो सोचने लगी। इसके हाथ पांव सईद का सोचते लरजिश करने लगे। इसने रात के दूसरे पहर इत्तेफाक से सईद की गुराहट सुनी थी, ऑफिस से कुछ फासले पर खड़ी होकर। जब वो दूसरी तरफ किसी को मौत से वार्न कर रहा था तब इसने नाम लिया था बेस्ट का, यानी अपना हवाला दिया था, फिर किंग की मौत का भी कहा था। चलो मैडम बहुत देर हो गई है। अभी वो अपना कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि एकदम आरिफ का भेजा हुआ आदमी इसके शॉपिंग बैग्स उठाया, खुद पेमेंट करता, इसे आगे चलने का इशारा दिया। वो डर जानती थी इसके पास गन मौजूद है। अगर इसने कोई भी होशियारी दिखाई तो या मशकूक हुई तो जरूर इसका काम तमाम कर देगा। तभी खामोशी से आगे चलकर गाड़ी में बैठ गई और इसके आदमी ने बैग्स इसके पास सीट पर रखे, ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी लॉक करते ही स्टार्ट की। वो करवा घूंट भर कर रह गई। मुझे मुस्कान ने बताया, आरिफ दांत ने गहरा सांस भरते कहा। सही बताया है। इसकी चलती लैपटॉप पर उंगलियां लम्हे को साकित हुई थी, फिर से इसी रफ्तार से चलने लगी। शहद रंग आंखें पल को सुकड़ी। वो फौरन अपनी जगह से उठा और ऑफिस के मुख्तलिफ दीवार गियर स्क्रीन्स की वजह से सुबह जैसी रोशनी फैली हुई थी। एक दीवार गियर स्क्रीन पर मुख्तलिफ डिवाइस शो हो रहे थे। इसने अपनी मेकअप की गई चिप मतलूबा जगह पर फिक्स करके इसके अंदर मशीन में गायब होते वापिस से अपनी जगह पर बैठते तेजी से उंगलियां चलाने लगा। तभी इस दीवार गियर स्क्रीन पर चिप का फॉल्ट शो हुआ, क्योंकि इसकी चिप रुकावट कर रही थी मकसद में। मतलब फिर से रीमेक करना पड़ेगा। वो इस फॉल्ट से अकस करता बड़बड़ाया। क्या? दांत ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, तुम बताओ डिस्टर्ब करने की वजह। वो गहरा सांस भरता पूरी ऑफिस रूम पर नजरें घुमाने लगा, जहाँ इसकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। ये एक बड़ा रूम था जहाँ एक साइड सईद की टेबल फाइल्स रखी हुई थी तो कई जगह के मैप रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आरिफ अंडरवर्ल्ड अजल सईद का मेन पर्सन, जो इसे ऐसी चिप डिवाइस बनाकर देता कि इसे लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो ऐसा बंदा था जिसका दिमाग एक मशीन के हिसाब से चलता था। ये इसकी खासियत किसी और ने नहीं, अलबत्ता सईद आलम ने जरूर पहचान ली थी। हाँ, ये वही आरिफ था जो किंग के महल में बाथरूम और रात गुजारने के बाद इनके बिस्तर और रूम साफ करता था। इसकी सलाहियत, इसकी जहनियत, इसकी शहद रंग आंखें बयान करती थी। जब वो कुछ यूं आंखें सुकेड़ कर देखता है जैसे काबिल के अंदर नजरें उतर जाएंगी। जिस तरह सिमी लेडी बॉस की ख्वाहिशमंद कई थे गैंग के लिए, वैसे अजल टेक्नोलॉजी के माहिर बंदा हर गैंग को चाहिए था, और इन सब का बेस्ट इसे हासिल करना या हाथ मिलाना नामुमकिन था। पर ब्लैक किंग हार नहीं मानने वाला था। जिस तरह इसका भेजा पैगाम जमान ने डर से सही तक नहीं पहुंचाया था, किंग गजब में आ गया था कि इसे ब्लाइंड ब्यूटी और बेस्ट वापस चाहिए किसी भी हाल में। आरिफ ने अजल नाम अंडरवर्ल्ड में खुद तजवीज किया था। आलिफ तो था ही आलिफ, इसकी पहचान ही वही थी। जहां बेस्ट नहीं वहां आलिफ, और जहां आलिफ नहीं वहां अजल। मिसी इन्हीं लड़कियों को हैंडल करने में के काम आती थी, इन लड़कियों के जो लड़कियों के हलवाने के लायक नहीं होती थी। इनके रास्ते में सिर्फ मर्द ही नहीं, बुराई में लड़कियां भी कहीं जगह अपना अहम किरदार अदा कर रही थी और कई गैंग का मेन हिस्सा होती थी। इसीलिए उन्होंने मिसी लेडी बॉस को वजूद में लाए। असल गैंग के मेन बंदे सिर्फ अजल, मिसी और सईद थे। आलिफ किंग के खात्मे तक इनका हिस्सा था। इस खेल में सईद आलम का राइट हैंड। जब किंग का खात्मा हो जाएगा तब यह टीम सिर्फ सईद आलम, आरिफ और मुस्कान तक रह जाएगी, और बैक पर मौजूद इनकी गैंग
आलिफ को फिर अपने दूसरे मिशन पर चले जाना था और अजल बेस्ट के राइट हैंड की जगह वापस आ जाता। ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए एक चाल चली थी कि असल बेस्ट का राइट हैंड कौन है, आलिफ या अजल। तुम जानते हो सुमैया आलम का पास? दाद ने कुछ झिझकते हुए आगाह किया, क्योंकि वहां वो भी मौजूद था जब सुमैया को कैद से निकाला गया था। देखो दाऊद, मैंने जहां अपनी आधी जिंदगी गुजारी थी वहां मेरे नजदीक जिस्म का खेल खेलना कबीरा गुनाह, और इस बाबत सोच को अपना नफा नुकसान देखना एक किस्म की हवस है। मुझे अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारनी है एक अच्छी जीवन साथी के साथ। और क्या कमी है सिमी जी में? वो एक हाफिज़े कुरान पाक है, 5 वक्त की नमाजी है। मैं सोचता हूँ हकीर सा वजूद रखने वाला एक कोठे वाली का बेटा जिसकी किस्मत यूं चमकेगी कि अल्लाह इसके दिल में इस प्यारी बंदी के जज्बात डालेगा। मैं सोचकर अपनी खुशबख्ती पर शशदर हूँ। जितना खुद पर नाज करो खुश हूँ, सजदे करूँ कम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने अपनी बीती जिंदगी कहाँ गुजारी। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मेरा दिल बस इसे चाहता है। और मैंने सुना है हाफिज़े कुरान बंदा या बंदी जिस घर में होंगे ना सिर्फ इस घर पर रहमत होगी बल्कि इस मोहल्ले पर इसकी रहमत बरसेगी। तो बस मैं भी इसी किस्म के लालच में आकर इसे इंतहाई खुद के करीब कर देना चाहता हूँ। एक ही सांस में कहते इसने आलिफ को सांस लेने का मौका दिए बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसे मिसी से ये उम्मीद नहीं थी वो यूं इसके जज्बात सब पर आया करके सिमी को सबकी नजरों में लाएगी। इसका मूड बेहद खराब हो गया था कि वहीं सब काम छोड़कर बाहर निकल आया। हालांकि इसका इरादा इस चिप का फॉल्ट खत्म करने का था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप मेक कर रहा था जो कितना ही वसी महल हो, इसे चिप को किसी इलेक्ट्रॉनिक जगह पर फिट करने से इस महल का सारा नक्शा स्क्रीन पर शो करेगी। बाहर आया तो नजरें सामने तस्बीह करती सिमी पर पड़ी। शायद जोहर की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। वो खुलकर मुस्कुराया, चेहरा आंखों में जैसे बाहर उतर आई। ये इसकी नजरों की आंची थी कि सिमी के माथे पर सिलवटें नमूदार हुई। अलबत्ता इसे देखने से ग्रेस कर रही थी क्योंकि वो इसकी शहद रंग आंखों के जज्बात से बुखला ही तो गई थी। खाने में क्या खाएंगी? वो सर झटकाकर नरमी से पूछने लगा। लहजे में इसके लिए अकीदत मोहब्बत इज्जत थी। मैंने खाना बना दिया है, शुक्रिया। एक पल के खामोशी के बाद वो बोली, जिससे सुनकर आरिफ खिल उठा। वल्लाह शुक्र किसी के नरम हाथों का खाना मिला, वरना आलम के हाथों का खाना खाकर अब दिल खराब होता जा रहा था। वह चहक कर बोलता किचन की सिमत भागा। सिमी सिर्फ इसकी पुश्त को घूरती रही। एहसान फरामोश, भाई इतने थके होने के बावजूद इतने जबरदस्त खाने बनाकर देता है और नवाब को खिलाता है, और इसके शिकवे। वो सोचकर रह गई। वापस अपनी तस्बीह की जानिब मुतवज्जो हुई क्योंकि फारिग इससे बैठा नहीं जाता था। कभी हुरुलैन के बाल संवारती तो कभी इसकी जिद पर इसे मजबूर होकर अपनी ही बनाई गई कहानियां सुनाती कि आखिर में जमाइयां लेती, मुंह बनाकर कहती, आपसे तो आलम अच्छी कहानी सुनाता है। सिमी अपने भाई के हाल पर हंस पड़ी, फिर रिमशा को इस कहानियां सुनाने का कहती। इसकी मोहब्बत वाली कहानियां हुरुलैन के दिल को छू जाती और वो झनपती शर्माई सी पूरी कहानी सुनती जब तक सिमी और रिमशा का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाते इसकी रंगत देखकर। आरिफ लहक चहक कर अरबी लैंग्वेज में कोई याद किया गाना गुनगुना रहा था जिसके मायने से खुद ला इल्म था। टेबल पर लजीज खाने लगाकर खुशबू सूंघता ठंडी आहें भर रहा था। सिमी नफी में सर हिलाती रह गई। और डॉक्टरनी साहिबा, जरा हुरुलैन को तो लेकर आए। इसने जोर से हाँक लगाई। रिमशा सुनती सर हिलाकर गार्डन की जानिब बढ़ गई क्योंकि कुछ देर पहले इसे वहीं छोड़कर तो आई थी। वो हुरुलैन से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो जान गई थी इस इंसान के ना होते भी वो अपनी बीवी पर पूरी नजर रखी हुई है, पर इसे अब अपनी जिंदगी का सोचना था या अपनी किस्मत का। आज माइयों की रस्म थी, हर तरफ शोर शराबा था। मुस्कुराहटे कह के चूड़ियों की खन खन ने फिजा में सहर फूंक दिया था। सफेद शेरवानी में मलबूस गले में हल्दी रंग मफलर पहने अपने द्रास कामत समेत शरारतों और खिलखिलाहटों से सबकी आंखें चमक रहा था। लड़कियों को नूर की किस्मत पर रश्क आने लगा तो कोई हसद से आग में जल रहा था। काफी आसिया बेगम को सुनाने लगी कि इस औरत की बेटी को बहू बना लिया जिसने सारी उम्र गैर मर्दों से दाद वसूली थी। इनके बीच रही एक। बरहाल इन्हें दुख था आसिया बेगम अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी, वो भी ऐसी लड़कियों से जिनका आगे पीछे कोई ना था। ये बात आसिया बेगम को झुलसा गई। ये इनके ही अल्फाज इन्हीं की तरफ पलट कर मिल रहे थे। आज इनके सामने इनकी बहू को सब सुना रहे थे। फिर क्या था, देखने वाले रूम में जब आसिया बेगम इन पर चढ़ दौड़ी, ये तक कह दिया, अगर इतनी ही चुभ रही है तो शक्ल दफा करो। ये मत भूलें कि इनकी बहू कोई ऐसी वैसी नहीं, इनके देवर की बेटी है, इल्वी खानदान की बेटी है। पता नहीं किस जज्बे से वो बोल गई थी कि नूर सुनते साकित इन्हें देखती रह गई। वो उलझ गई कि कौन सा रूप था ये अम्मी का। कभी बिल्कुल अनजान बनी नफरत के तीर बरसाती हैं तो कभी बिल्कुल अपनी सगी माँ बन जाती हैं।
पर आज अपने बेटे की खुशी में वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। उन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे इस दिन के, और वो कभी इन्हें खराब नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने बेटे को नाखुश। कमाल साहब खुश थे कि चलो इनके भाई की एक बेटी को उन्होंने अपने तहफ्फुज़ में ले लिया। कुछ मुंह दिखाने के लायक तो बने अपने भाई के। वहीं अपने बेटे की खुशी पर वो इंतहाई खुश थे। हाँ, बुरहान ने गलत किया था, पर इसे यूं हठधर्मी देखकर वो कोई जोर नहीं दे रहे थे मुस्कान को निकालने का, क्योंकि इस लिहाज से इन्हें अपने बेटे को भी खोना पड़ जाता जो हर किसी ने नहीं चाहेगे। वो दांत के लाल सूट में मलबूस थी, हल्दी कलर का इंतहाई खूबसूरत घेरेदार लहंगा जिस पर ब्लैक और व्हाइट हैवी कढ़ाई थी और इसके लगे नगीने सितारे। वो लहंगा काफी भारी था और इस पर कई गई मेहनत इंतहाई महंगी महीनों पर मुश्तमिल थी। बॉर्डर पर सोने की तारे और नगीने सजे थे डिजाइन से, जिनकी चमक आंखों में चुभ रही थी। हर कोई मोहब्बत से इसके कपड़ों को देखता। नूर खुद पहली बार देखकर मोहब्बत रह गई। इसने हाथों से छुआ था कि हकीकत में ये लहंगा इसका है। साथ ही खूबसूरत हील, फूलों की ज्वेलरी जिसमें गोल्डन की सजावट थी। ब्यूटिशियन के पहनने पर इसे वो खूबसूरत सा लहंगा पहनने को भेजा। नूर शर्म दुख से कट गई कि ये इसे बड़ा होगा, और वह तब साकित रह गई जब इसकी फिटिंग और हाइट का था। कहीं वो बहुत खुश थी, इसी खुशी में मगन थी। ब्यूटिशियन ने इसका मेकअप किया, फूलों की ज्वेलरी पहनाई। आसिया बेगम ने देखते से माशाल्लाह कहते सदका उतारा। इसके स्याह बाल खूबसूरत बालों के डिजाइन बनाते आगे रखे थे और इनमें छोटे छोटे सुर्ख पीले फूल लगाए इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए। बी से मुस्कुराता देखकर मुतमईन थी कि चलो वो खुश है, इन्हें और क्या चाहिए। भारी दुपट्टा सर पर सजाए, इस पर जालीदार घूंघट डाला गया। अचानक से इसने घबराहट हुई, इसे जैसे किसी अपने की जरूरत हो इसी पल कोई दिल के बेहद करीब रिश्ते की। जैसे हुरुलैन सोचकर आंखें भीग गईं। अरे आसिया, वो तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? खानदान की एक औरत ने मस्खरे से पूछा, मुस्कुराहट छुपाकर। इसके बावजूद वो दबी दबी हंसी बिखर गई। पर आसिया बेगम आज अपने तमाम तर जब्त आजमाने पर तुली थी। वो अपने रूम में है, तैयार हो रही है, अकेली नहीं है, बच्ची भी है। इसे तैयार करना है, फिर खुद तैयार होना है, बुरहान को भी मदद देनी है तैयारी में, इसीलिए आने में देर हो जाएगी। चलो तब तक हम इसे नीचे चलते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर नरमी से कहा, और नूर गश पर गश खा रही थी। हो क्या जा रहा था इस घर में, इसे समझ नहीं आ रहा था। बीबी कुछ चौंकी, फिर संभल गई। हाँ चलो, उन्होंने हामी भरी तो आसिया बेगम ने सर झुकाए बैठी नूर का सर चूमा और इसे अपने हिसार में लेकर उठाया। दूसरी तरफ बी ने आकर इसका हाथ थमा। वो झंपी भारी कपड़ों से हील में बमुश्किल खड़ी थी। रश्क भरी नजरें नूरुलैन के उठे कदमों पर बिछ रही थी। कोई मोहब्बत था तो कोई सहरा रहा था। तू तो बड़ा निखर रहा है। हाँ, मैंने कंधा मारते कहा। दाद हंसा और फिर जोर से कहकर लगा उठा। जाहिर है यार, परसों रुखसती है, मैं ना निखरूंगा तो फिर क्या मेरी दुल्हन निखरेगी। इसने बेबाकी की हद कर दी थी कि एक साथ कई मुक्के इसकी चौड़ी पीठ पर पड़े। कमीनो, तुम सब क्यों जल रहे हो? जाओ अपने माँ बाप से कहो लाकर दें कोई उठाकर। मेरी किस्मत पर जलकर मुझे क्यों मार रहे हो बदनसीबो मनहूसो। वो भुनाकर करा उठा, इन पर चढ़ दौड़ा कि अब की बार कहकर लगाने की बारी इनकी थी। बड़ा उतावला हुआ जा रहा है, जाकर दिखाना हमें भाभी के रूम में, हम अपनी मूछें कटवा देंगे। फहद ने अपनी मूछों को मरोड़ते हुए कहा कि दांत का सदमे से मुंह खुल गया। पर क्यों? इसकी आवाज सदमे से हलक में फंस गई। बस रुखसती वाली रात हमारा मासूम दर हकीकत कमीना दाऊद हमारे साथ रहेगा, दोस्ती के खूबसूरत पलों को याद करने के लिए। स्मै ने फौरन अपना मंसूबा पेश किया। सबने इकरार में हाँ कहा, बिल्कुल कहते सर हिलाया। इसका सदमे से बुरा हाल था, अगर बर वक्त जिशान पानी ना पिलाता तो वहीं ढेर हो जाता। खत्म यारी, बिल्कुल खत्म। निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। तुम सबकी जैसी मनहूस शक्ल है वैसे इरादे मेरी खुशियों के दुश्मन। मैं एक पल अपनी दहलीज पर टिकने नहीं दूंगा। भुना कर वो उठा और इन्हें धक्का देते बाहर निकालने लगा। लॉन की फिजा में इसकी हालत पर बुलंद और बांग कह के गूंज रहे हैं। सब दुल्हे के लबों पर मुस्कुराहट की जगह परेशानी चेहरे पर देखते खुद मुस्तरब हो गए थे, जबकि इसके दोस्त पर सुकून देगों में मुंह दिए वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ मुंह में डालने घूम रहे थे। आजाद बेफिक्र पुरसुकून। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबको, रोक कर दिखाओ मुझे। वो पीछे पीछे सबके कॉलर पकड़ते इन्हें बावर करवा रहा था, जबकि वो मस्खरे से हंसते कंधे उचका देते। और दाद जानता था वो इनमें से थे, जान जाए मुझे ना जाए। या अल्लाह, मैंने तो सुना था दोस्ती नेमत होती है, यहाँ तो मेरे लिए जहमत बनी हुई है। थक कर इसने छतनुमा बरकी कमकमों के पारा आसमान को देखा। दुल्हन आ गई,
अचानक फिजा में शोर मचता, तालियां सरगोशियां अरूज पर पहुंच चुकी थी। दाद ने मुड़कर धड़कते दिल से देखना चाहा। किसी पल इसके दोस्तों ने गर्दन दबोची। तू क्या देख रहा है मासूम बच्चे? बिलावल ने कान में दिल चलाने वाली सरगोशी की और इसे एक तरफ घसीटते लगे फूलों से महकते स्टेज से दूर किया। छोड़ो बेगैर, तो मेरी शादी हो रही है, ये जुल्म तो ना करो, अल्लाह पूछे तुम सबको। इसने बुलंद दुहाइयां दी, फड़फड़ाया, चीखा, पर 10 जवानों पर मुश्तमिल इसके दोस्तों से वो कहाँ तक बच पाता। घसीट कर ले गए और घर के पीछे कुर्सी पर बांध दिया, जहां पहले ही सारा इंतजाम किया गया था। दाद शशदर था इन्हें कहके लगाते देख, हंसते देखकर। चलो यार, भाभी से तो मिलकर आए, क्या गजब लग रही थी। दाद के बिखरे बाल, वो उठे और दाद तड़प गया। अल्लाह पूछे तुम सब मर मिट जाओ, कीड़े पड़े तुम सबको, मेरी तुम्हारी बीवियां तुम सबको जूते मारे, लाते मारकर पहली रात घर से निकालें, फोत हो जाओ, कब्र में मिर्गी के दौरे पड़े, जालिमों मुझ पर रहम करो। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर वहां कहाँ मानने वाले थे। कहका लगाते हाथ पर हाथ मारते वहां से निकले। किसी को इस मासूम पर रहम नहीं आया। गुस्से से वो फड़फड़ाया और पीछे से हाथ खोलने की भरपूर कोशिश करने लगा, जबकि लड़कियों की तालियां, शोर, कानों की गुनगुनाहट इसके घर के पीछे सुनाई दे रही थी, जहां वो अकेला अंधेरे में बहंदा बैठा हुआ था। कहीं नूर ये ना समझे मैं भाग गया। या अल्लाह मेरी बोनी को हर बदगुमानी से पाक रखना। दिल को सोचते इसने ऊपर आसमान की तरफ सदा उठाई। मीसी यार, कहा हो मेरी बहन भाभी की सख्त जरूरत है, पहुंच जाओ। इसकी सदाएं गूंजने लगी। कितने बेरहम दोस्त थे, दूल्हे को किडनैप कर लिया। मैं कभी इस गुनाह को बख्श नहीं करूंगा, लाते मारूंगा। मैंने अपनी बोनी को एक नजर देखा भी नहीं। हाय मेरे मौला, रहम कर मुझ पर, मासूम पर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इस रट मासूम वाली अभी जारी थी। तुम अब बाहर निकलो, या वही सोने का इरादा है? इंतजार में बैठे बात के लिए बुरहान ने चिढ़कर कहा। तो तुम्हें किसने कहा था ये लुंगी लाने के लिए? अंदर वो भी गुस्से में थी। फौरन दाढ़ी बुरहान चटपटा गया। बेटा तुम उठ कर जाओ, बाहर चची की माइयों की रस्म है, उठो शाबाश। वहां से नाकाम होते इसने मुंह के बल सोई फेरी के सर पर हाथ फेरते जगाया। कैसे तैयार हूँ बाबा, पहले मम्मा को तो रेडी होने दे। वो बुरहान की तरह चिढ़ गई। जाहिर था घंटा होने को आया था, अंदर से कोई बाहर आने की किरण नजर नहीं आ रही थी। बाबा एक राज वाली बात बताऊं? तो फतन ख्याल आने पर वो झटके से उठ बैठी और जोश और सरगोशियां अंदाज में बोली। जरूर बताओ बाबा की जान। बुरहान ने बाहों में भरकर इसे, बाबा हम कल गए थे ना मामू के पास, इसने आगाज किया, जिस पर बुरहान ने सर हिलाया कि मजीद बोला। बाबा वहाँ मामू ने मामा की एक बात बताई, वो क्यों लड़ती हैं सबसे, वरना मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। कौन सी बात? बुरहान ने चौंक कर देखा। बाबा मम्मा जब छोटी थी मेरे जितनी, तब वो मामू के साथ खेलते खेलते वहां करीब नाले में गिर गई थी। गटर का नाला, इसमें गिर गई और 2 दिन इस गटर के नाले में रही। फिर जब बाहर आई मामू वाले इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तब वहां मालूम हुआ मामा का खून काला हो चुका है, जबकि मेरे मामू का खून प्योर रेड है। डॉक्टर ने मामू वालों को बताया कि मामा के अंदर अब गटर के कीड़े रहते हैं और मेरी मामा अब गटर की फीमेल कीड़ी है। इसने इसीलिए ये सब झगड़े होते हैं। ये मामा नहीं गटर की कीड़ी करती है। वो बुरहान के कान में मुंह रखे इसे राजदाराना बता रही थी। और मामू ने बताया कि जब झगड़ा करे मामा तो इन्हें सिर्फ ये कहो, मामा गटर की कीड़ी, चुप हो जाओ। फरी इंतहाई संजीदगी से इसे बता रही थी और बुरहान कहकर जद करते सुर्ख बढ़ गया। ये किस मामू ने बताया? इसने मुंह पर हाथ फेरते पूछा। गटर की कीड़ी, वो बड़बड़ाया। सादे एक छत फाड़ कहकर रूम की फिजा में गूंज उठा। जिस भी मामू ने कहा सोफी से सच कहा, ये वाकई गटर की कीड़ी है। वो हंसता बोला कि इतनी सीरियस बात पर बुरहान को हंसते देखकर फेरी हैरान और परेशान इनका चेहरा तकने लगी। दूसरी तरफ मुस्कान अचानक से इसका कहकर सुनती हैरान थी। अचानक आखिर स्वामी को हो क्या गया? कोई मर गया है क्या? वो अंदर से बोली। बुरहान ने चौंकर दरवाजे की सिम देखा और मुंह बसोड़ लिया। नहीं, मेरी बीवी अभी जिंदा है। अल्लाह 100 साल उम्र दे इसे। दरवाजा खोलकर इसने कहा। बुरहान ने मुस्कुराती फेरी से नजरें हटाकर इसकी आवाज सुनते बाथरूम के दरवाजे की सिम देखा। दूसरे लम्हे नजरें जैसे साकित हुई। कई पल वो कुछ बोल ना सका, मोहब्बत सा बस इसे तकता रहा। स्याह ब्लैक झिलमिलाती साड़ी जिस पर गोल्डन खूबसूरत काम किया गया था, इसके दराज कर इस कदर जच रही थी कि बुरहान की आंखें खैरा हो गई। वो कोई हलक से लफ्ज ना अदा कर सका। गंग सा इनके नाजुक सरापे को तकता रह गया। सुनहरी रेशम के गुच्छे मानी जिसके लंबे बाल शानों पर बिखर पड़े थे। सुराही गर्दन, चमकती बूंदें थी, गुलाब की पंखड़ियों जैसे शगरफी लबों की मस्खरे भरी मुस्कुराहट।
भाई आज इसका बेड़ा गर्क नहीं कर पाई थी। तीखी नाक, सुनहरी आंखें, भीगी स्याह लाबनी पलकें। इसकी नजरें बार बार भटक कर इसके तीखे नैन नकूश में उलझने लगी। इसका मोम ससरापा इसे अपनी सिर्फ खींचने लगा। मां ने इसे अपनी फैरी का ख्याल आया, नजरें काफी जब्त आजमा कर हटाई। आज ये गटर की कीड़ी ना सिर्फ दिल बल्कि मिर्दे, फेफड़े, गुर्दे सबकी हालत खराब करने लगी है। ठंडी सांस भरते फैरी को चेंज करने जाने का इशारा दिया। वो सर हिलाती बेड पर रखे येलो कलर के फ्रॉक उठाकर बुरहान के गाल पर किस करती बाथरूम में बंद हो गई। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी मुस्कान ने मुंह बना लिया। फैरी के जाते बुरहान मुस्कुराता साड़ी में इसके वजूद को देखता बेखुद सा आगे बढ़ा और आगे आकर इससे पीछे हो गया। मुस्कान ने अब्रू उठाकर इसे देखा। वो सर को नफी में जुनबिश देता रह गया। डोरियां नहीं बांधी, इसके बालों को पुश से हटाए, स्पेट बेदाग दमकती रंगत को देखा। इस पर ब्लैक डोरियां इंतहाई खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता ही इसने इसकी पुश्त पर उंगलियां फेरी। पल के पल दोनों की नजरें आईने में टकराई। अगले ही पल इसने झटके से इसका रुख मोड़ा। वो घूर कर इसे देख रही थी, जबकि वो खुमार आलूदा नजरों से इसकी सुनहरी आंखों में देखता मुस्कुराया और वो हल्की सी फूंकी इसके लाबनी पलकों पर मारी। वो बेहोश होते होते बची। क्या हुआ स्वामी? इसने ड्रामाई अंदाज में पूछा। पागल हो गया है स्वामी, गटर की कीड़ी, हंसकर कहते हो इसका नाम बड़बड़ाया। मुस्कान ने ना समझी से देखा, तभी इसकी सुराहीदार गर्दन में उंगलियां घुमाई। आज तुम्हें नहीं लगता हमें एक अलग रूम बुक करवाना चाहिए? वो इसका सर खींच के करीब करता कान के पास सरगोशियाना अंदाज में बोला। यकजक इसकी रंगत मत गैर होगी और बमुश्किल खुद को संभाला। अच्छा वो क्यों? वो इसे तंग होते हसार में कसमसाई। क्यों से क्या मतलब है? क्या तुम बच्ची हो? मुझे समझाना पड़ेगा। वो सर उठाकर इसे घूरता बोला। बकवास ज्यादा मत करें, मेरी डोरियां बांधे ताकि मैं बाहर जा सकूं। झटके से इसके सार में मुड़कर वो बोली। बुरहान ने सख्त नजरों से इसकी पुश्त को देखा। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं आ रही? वो गुस्सा दबाकर बोला। नहीं। वो लापरवाही से बोलती बुरहान की लाई गई ज्वेलरी देखने लगी, जबकि वो इसके पीछे दांत पर दांत जमाए खड़ा था। दफातन वो कुछ सोचकर मुस्कुराया और इसकी पुश्त पर बोसा देते इसकी डोरियां बांधने लगा। तुम अगर लेडी बॉस हो तो एसीपी हूं मैं। मुजरिमों को पकड़ना और बेबस करना मुझे अच्छे से आता है, इसने कहते ब्लाउज कंधे से सरकाया। क्या बदतमीजी है बेहुदा एसीपी? वो खुराई जिस पर बुरहान ने खूबसूरत से कहका लगाकर इसे मोहब्बत से अपने सार में तंग एहसार में भरा। मेरा दिल नहीं कर रहा डोरियां बांधने को। इसने झुककर इसके कानों की सुर्ख लू को छुआ। ना चाहते हुए भी इसके तीखे नकुश में सुर्खी फैल गई। छोड़ो मुझे, वरना मैं चीखकर तुम्हारे माँ बाप को बुला लूंगी कि ये बेहूदगी दिखाऊंगी। वो मचल गई। आज वो जैसे मुकाबले पर उतर आया था। देखो मैंने ये लुंगी वाला ड्रेस पहना है, मैं गिर जाऊंगी, छोड़ो आज मुझे। वो फटफड़ाई। बुरहान ने दिल खोल कर कह लगाया। यही है बस, है मेरी बॉसनी। वो इसके गिर्द अपना दहमकता लम्स छोड़ता इसे बेबस कर गया। इसकी बढ़ती जिसारतों पर वो आंखें पीछे हरकत करने लगी। तभी इसकी उंगलियां डोरियां बांधते इसका लम्स इसकी पुश्त पर हिंगने लगा। फेरी आ जाएगी प्लीज बुरहान। वो झंझलाती से इल्तिजा करने लगी। बुरहान ने सर नफी में हिलाते इसके बाजू को झगड़ा और घसीट कर ड्रेसिंग रूम में लाया। अब बोलो। दीवार से इसकी पुष्टि खाकर इससे दोनों तरफ हाथ टिकाए। शर्म करो, तुम्हारे अपनों की रस्म है। वो दांत किचकिचाए बोली। बुरहान हंस पड़ा। हाँ तो हम जा रहे हैं, पर पहली बार मेरी बीवी ने इंसानों वाला हुलिया अपनाया है। तारीफ तो बनती है जान। इसकी नाक से नाक टच करते वो बोला और वो इसकी जज्बात से चूर आंखों में देखने लगी। दोनों की नजरें मिली। वो बगैर शर्माई से देखती रही, जिस पर दाद देते बुरहान ने अब्रू उठाई। वो नजरें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। अब करो मेरी तारीफ। वो कुछ चढ़ गई इसकी मुसलसल खामोशी से। करो। वो आंखों में देखता कुछ करीब हुआ कि इसकी सांसों की तपिश पर वो झनपने लगी। करो फिर, इसने जिद होकर कहा, पर इसे नहीं मालूम था वो किसकी इजाजत चाह रहा है। अंदाजा तो तब हुआ जब अचानक से इसके चेहरे पर झुका और इसके नाजुक वजूद को अपने सार में भर लिया। वो झुलस के इसे झुलसा देने में लम्स पर आंखें नीचे से कंधे पर हाथ रखे। बहुत खूबसूरत हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। वो इसके कानों में सरगोशी करने लगा। मुस्कान गहरा सांस भरती से पीछे करने लगी। मामा! फेरी रूम में दोनों को ना पाकर हैरत से पुकारने लगी। पागल हो गए हो, छोड़ो। इसने गुस्से से कहा, पर वो राजी कहाँ था। इस बिल्कुल मदहोश इसके लम्स में खोया हुआ था। तुम ऐसे नहीं मानोगे जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसने तंजिया कहा। कुछ पल बस। इसके गाल को सहलाते हुए गंभीर बोझल भारी आवाज में बोला। मुस्कान ने दांत पीसे इसका दिमाग घूम गया और दूसरे पल इसे नींद से जगाने के लिए अपना हाथ घुमाकर इसके मुंह पर जड़ दिया कि वह सटपटाकर कराह से दूर हुआ। अब कौन सी मौत बढ़ गई थी? अपने जबड़े को पकड़े वो इस पर घुराया। मौत मुझे नहीं, तुम पर फौदगी के दौरे पड़ रहे थे बेहुदा। वो अपनी साड़ी का पल्लू शानों पर दुरुस्त करती काट खाने को दौड़ी। वो लम्हे को घबरा गया।
तुम मुझे कैसे मुक्का मार सकती हो? वो अपनी शर्ट दुरुस्त करते इस पर चढ़ दौड़ा। तुम लायक ही सी के हो, ये लो, अब मालूम हो गया कैसे मारा। इसके कहने के साथ ही दूसरा मुक्का घुमाकर इसके गाल पर मारा कि मुंह में खून का जायका घुल गया। तुम, वो इस पर झपटा और इसके बाजू को पकड़कर दीवार से लगाया, पर वो ना चाहते हुए भी नरमी बरत गया। तुमने मुझे मारा? मुस्कान चटक पड़ी। हाँ मारा, क्योंकि तुम एक साइको औरत हो। 2 पल खुशी के नहीं दे सकती शोहर को, गटर की मरीजा। इसी भी तुमने मुझे गटर की मरीजा कहा? वो सदमे से चिल्लाई। हाँ, क्योंकि तुम हो। 2 दिन गटर में गुजार कर वहां के कीड़े कीड़ियां खाकर आई हो। हाँ थू, इसके कहते आपकाई के अंदाज में घिन आई और वो नाक चढ़ाकर रखा जैसे इसमें से स्मेल आ रही हो। मैं गटर की मरीजा हूँ? जैसे कि साथ अभी तुम वो हुराई और साड़ी अपनी गर्दन पर लपेट कर वो इस पर झपटी के देखते ही फैरी के देखते दोनों गुत्थम गुत्था हुए। उफ, मैं क्या कहूँ अब। वो पाँव को छूता येलो फ्रॉक उंगलियों में थामे अब दांतों में दबा गई। मम्मा, गटर की कीड़ी, थक कर वो बोली। बुरहान का गला दबाती मुस्कान साकित हो गई, जबकि इसके नीचे बेबस पड़ा बुरहान शानदार कहका लगा उठा और हंसते इसकी हालत देखकर लोटपोट हो गया। क्या कहा तुमने? बाल पीछे चढ़े रखती वो फेरी के सामने आई और इसकी मासूम से नजरें अपने नीचे पड़े बाप से हटाकर माँ को देखा। बोलो, इससे सख्त लहजे में टोका। मम्मा, गटर की कीड़ी, इसने डरते बताया और इसके पेट की सिमटे देखा। कहाँ है मामा गटर की कीड़ी? मरीजा कीड़ी लगती है, इतनी यंग खूबसूरत हूँ, प्यारा सा चेहरा है, कहाँ से गटर जैसी लगती हूँ? वो सर पकड़कर बोली। बुरहान हंसता वहीं लेटा सर के नीचे बाजू रखते बड़ी फुर्सत से इसकी पुश्त को देख रहा था, जहाँ स्याह गोल्डन कढ़ाई वाली साड़ी पर दराज बाल बिखरे हुए थे। बेसाख्ता खुद पर हंस पड़ा कि अक्सर लड़ते जंग के वक्त वो इसके वजूद में खो जाता था और वो जी भरकर खून खराबा करके जाती थी। मामा, मैं नहीं, मामू कहते हैं आप गटर की कीड़ी हैं। आप 2 दिन गटर में रहकर आई हैं, इसीलिए आपका खून काला है और इनका सुर्ख प्योर। आपको डॉक्टर गटर की मरीजा कहते हैं। वो सारी हकीकत इसके गोश गुजार कर गई। नहीं बेटा, मायूस होने की जरूरत नहीं। अब हम गटर की कीड़ी को गटर की कीड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या गटर कीड़ी बोलेंगे? पुराने से जिद करते मासूमियत से अल्फाज अदा करता बड़ा महसूस हो रहा था। बिच्छू, सतेला बिच्छू, सही डंग मारा है बिच्छू। वो बड़बड़ा कर रह गई और वहां से निकली। मम्मा, मामू ने कहा था जब मैं आपको ये कहूंगी कीड़ी, आई मीन फीमेल कीड़ी, तो आप झगड़ा नहीं करेंगी। वो इसे आईने के सामने खड़ा देखकर बोली। अंदाजा साफ था, आप तो सच में साबित हो गई। वो तुम्हारा मामू नहीं है, इस दिन मैंने समझाया था, सतेला बिच्छू है, मीसना घुन्ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो दांत कचकचाकर ब्रश करने लगी, जबकि फेरी पास आकर इसके कान पकड़ती खड़ी हो गई और तो मुस्कान ने देखकर इसे बेसाख्ता खुद में भेजा। ड्रेसिंग रूम से निकलते ये मंजर बुरहान ने कुछ चौंक कर देखा था। एक यतीम ही दूसरे यतीम का दुख समझ सकता था। वो बड़बड़ाया और अपना ब्लैक 3 पीस सूट लेकर बाथरूम में बंद हो गया। लॉन सारा मेहमानों से भर गया था। मलिक खानदान की तरफ से आलिया बेगम, दराब, मिशाल, नशीन, हसन, सफियान और हुरिया आई हुई थी, जबकि तकवा और साइम ने मेहंदी और शादी में आने का कहा था, तो वो अपनी नई नई जॉब और हॉस्पिटल की तामीर में काफी मसरूफ थे। दाद कहाँ है कमाल? आसिया बेगम परेशान से कमाल साहब के पास आकर बोली। मुझे क्या मालूम, यही था। उन्होंने लाउंज में नजरें घुमाई। कहाँ चला गया ये लड़का? रस्म शुरू होने वाली है। वो परेशान से दोनों तरफ चली गई, जबकि इसके दोस्तों में दबी दबी हंसी और शर्मिंदगी भी थी। स्मैर बेटा, वो तुम लोगों के साथ था ना? कमाल साहब इनके पास चले आए। वो बौखलाए से पटा गए। जी जी अंकल, वो हमारे साथ था। फिर अचानक कॉल आई और अर्जेंट, और वो चला गया। फहद ने फौरन बहाना गढ़ा। ओहो, एक तो इस लड़के की बेवकूफियां, कोई इसे मौके पर कहीं जाता है, बेवकूफ गधा। वो बड़बड़ाते वहां से हटे। तब सबने अफसोस से इसकी गुमशुदगी और कमाल साहब की बात पर बेशक कहा। वैसे गया कहाँ तुम लोगों ने? कहीं देखा है इसे? वो मसनूई हैरत से एक दूसरे से पूछने लगे। नहीं यार, हमने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ देर पहले गेट की तरफ बढ़ रहा था। जिशान ने मुस्कुराते सरिया अंदाज में बताया। अच्छा, आ जाएगा, तुम सब दिल छोटा मत करो। बिलावल ने सबके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें यार की गुमशुदगी पर हौसला दिया। यार, मेरा सांस घुट रहा है, कोई ठंडा पानी पिला दे। पता नहीं मेरा मासूम बुज़दिल शोना मोना सा यार कहाँ गया है। स्मैर सीना मसलता चेयर संभाल कर बैठा। तब सब परेशान इसका चेहरा तकने लगे। ये ले, जल्दी से पी ले, क्या पता घबराहट दिमाग पर न चढ़ जाए। सबने एकदम अपना जूता पांव से निकालकर इसके मुंह के करीब किया, इंतहाई फिक्रमंदी से। स्मैर ने पहले इनकी शक्ल देखी, फिर इनके जूते जो ठंडे के तौर पर मिले थे। लानत हो तुम जैसे शैतानों, सिर्फ दोस्तों के शर से अल्लाह सबको महफूज रखे। दफा करो। सॉफ्ट ड्रिंक के जूते जैसी शक्ल लेकर वो धाड़ता वहां से उठा और सब कह के बुलंद कह के लगा उठे।
आया बड़ा घबराहट हो रही है बच्चे को। पी ले तो हमारा जूता 10 दिन बेड से न उठता। सबने बारी बारी नाक बंद करके जूते सूंघे और अब काई देकर पाँव में पहन लिए। माशाल्लाह आसिया, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी सोनी है, एक उम्र रसीद खतून ने मुस्कान को देखकर भी साख्ता तारीफ की। करती भी क्यों ना, स्याह साड़ी में नफीसी ज्वेलरी, दराज कद धान पान सा वजूद, खुले बाल जो पुश्त के शानों पर बिखरे पड़े थे, सुनहरी आंखों में ब्लैक और गोल्डन आईशेडो का टच, लबों पर डीप रेड लिपस्टिक। जब सीढ़ियां उतरती बाहर लॉन में आई तो सबके मुंह खुले पड़े थे। वहीं आसिया बेगम जो है इसके पहनावे और से डरी सहमी हुई थी। इसे यूं तैयार होकर इनकी गर्दन खानदान में कुछ ऊंची हो गई, जैसे ये सारी तारीफ इन्हीं की हो रही हो। दादी मैं कैसी लग रही हूँ? फेरी भागकर आसिया बेगम के सामने आई। उन्होंने कुछ सटपटाकर इसे यूं सबके सामने मुखातिब पर घूरा। वो भी अपनी मम्मा की बेटी थी, चढ़कर इनकी गोद में बैठ गई। दादी बताए ना। इसकी जिद की वजह से सबके देखने पर उन्होंने इसके गाल को छुआ। बहुत प्यारी, जैसे सच की फेरी। इनकी तारीफ पर जहाँ घूरती मुस्कान रिलैक्स होकर मुस्कुराई थी, वही फेरी खिल उठी। अब यू सो मच दादी, इसके कहते ही आसिया बेगम के गाल पर किस कर दिया और इनके सामने अपनी गाल पेश की। वो सबको मुस्कुराता देखकर मुस्कुराई और ना चाहते हुए इसके गाल पर लब रखे। क्या अजीब सा एहसास हुआ और वो मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी लग रही हो। एक बार फिर वो खालिस मोहब्बत से बोली। फेरी खुशी से खिलखिलाई, झपटकर नूर की गोद में चढ़ी। वाह मम्मा, ये तो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इसकी चीख बुलंद हुई। नूर झनक गई, जबकि बाकी सब इसकी मासूमियत पर हंसे। दाऊद भाई कहाँ है? हुरिया ने हैरत से पूछा। वाकई बहुत देर हो गई है रस्म को। आलिया बेगम ने सर हिलाया। तभी आसिया बेगम ने नूर के पास बैठी मुस्कान को देखा। जाओ बुरहान से कहलवाओ, दाद को बुलाए, उन्होंने तनकर कहा और आबरू चुकाकर इन्हें घूरी उठी। इनका मुखातिब करना अच्छा नहीं लगा, पर बेटी भी कह सकती थी। सुनो, तुम दाद के दोस्त हो ना? वो कहाँ है? खाने की टेबल पर बैठे बिरयानी से साफ करते मुसलसल बड़बड़ाते स्मेर के सर पर पहुंची, जो ठंडे का गिलास मुंह को लगा चुका था। मुस्कान के सर्द लहजे पर अचानक से अच्छू लगा और वो बुरी तरह खांसने लगा। वो खामोशी से इसे खांसते देखती रही। चलो अब बस भी करो, सारे साल के जरासीम यही निकालने हैं क्या? वो उकता गई। स्मेर ने चोर नजरें उठाई। मुझे क्या मालूम, भाभी बाहर गया था। वो मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़कर लेग पीस मुंह में लगाने लगा। भाभी के देवर, अब सीधे बताओगे या दूं एक? वो इसकी नजरों का कतराना देख चुकी थी। क्या वो जरीक निगाहें रखने वाली मुस्कान से बच सकता था? भाभी मुझे सच में नहीं मालूम, वो बाहर काम से गया था। आप दूसरों से पूछ ले, वो भी तो कमीने मेरे साथ थे, इसने बुखलाकर कहा। ओ ग्रेट, जब वो तुम्हारे साथ थे तो जो इन्हें मालूम होगा वो तुम्हें, और जो तुम्हें वो इन्हें। अब शराफत से सीधा बताते हो या निकालो इन सारी खाली प्लेट्स के 100 रुपए। क्या मीसनी जी, अब हम गरीब को शादी के खाने के पैसे देने पड़ेंगे, जबकि मालूम है हमारा गुजारा इसी पर तो है। क्यों तारीख रकम कर रही हैं? तेरी तारीख की तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सबको हद से ज्यादा शरीफ होने का बुखार चढ़ा है। वह चुप कर कहती प्लेट से फोक उठाकर इसकी शाहरुख के करीब लाई। देखो बता रहे हो या? इससे 2 मिनट में तुम्हारा काम तमाम और 30 सेकंड में तुम्हारे इस नकारा दिल का। इसने जोर दिया और शाहरुख पर वो झुरझुरी ले उठा। भाभी मैंने सबको इसे घसीट कर घर के पीछे जाते हुए देखा था। वो मुश्किल बोला और पाँव से बूट उतारे। अगर वहां ना मिला तो फिर बताती हूँ तुम्हें। वो घूरती हुई वहां से निकली, जबकि आयतल कुर्सी पर थे सुमैर ने और जोरदार भरा और निवाला लिया और जूते उठाकर वहां से भागा। आए बड़े मुझे जूते पिलाने वाले, अब मालूम पड़ेगा। वो हूं करता रह गया, जबकि दूसरी तरफ बेबसी से पड़े दाद की नजरें जब नीसनी पर पड़ी तो वह जी जान से खिल उठा। हाँ भाई की जान, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। मेरी बहन अपने छोटे मासूम भाई को आजाद करवाया। वो चहककर फंसी आवाज में बोला। मुस्कान हंसती हुई इसे खोलने लगी। तभी पार्किंग एरिया में स्याह लैंड क्रूजर रुकी। इसके पीछे ही इसके आदमी की गाड़ी, जो वहां अलर्ट होकर खड़े हो गए थे। कोई मशकूक लगे, ऑर्डर का इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो सख्त लहजे में बोला। इसके आदमी मुअद्दब से सर हिला गए। आप बेफिक्र रहें, मैडम की सेफ्टी हमें अपनी जिंदगी से अजीज है सर। वो सर हिलाकर मुस्कुराया और दूसरी तरफ आकर दरवाजा खोला। हल्दी कलर जिस पर गुलाबी फूलों जैसी कढ़ाई की गई थी, भारी पाँव के छूते फ्रॉक में नफीस सी हील पहने, लंबी चोटी, मेकअप के नाम पर हमेशा की तरह लबों पर इसके लम्स की रंगत लिए, शानों पर दुपट्टा फैलाए, छोटी में बंधे बाल। आलम ने हाथ बढ़ाकर इसका नाजुक सा हाथ थामा और इसे एहतियात से बाहर निकाल लाया। इसके दूसरे हाथ में सिगार था, जहां इसका धुआं होरोलैंड की पहुंच से दूर था। आलम ने मदवसर नजरों से इसके दमकते चेहरे को देखा और इसकी नाजुक कमर में बाजू डाला। वो इसके करीब होती झनक गई। हम पहुंच गए हैं ना? इसने अहंकार भरा और वो कदम उठाया। होरोलैंड ने सहम कर कदम उठाया। ये मुश्किल है, मेरे पांव दुख रहे हैं। फिर तुमने जिद क्यों की?
वो रुककर परेशानी से पाँव देखने लगा। हाँ तो मुझे क्या पता था ऐसे तकलीफ देते हैं। वो शर्मिंदगी से आंखें मीच गई। बरकी कमकमों की रोशनी, फूलों की खुशबू, लाइटों की झुरमट, लॉन में छोटी छोटी लाइट से सजे कदावर दरख्त, माहौल काफी सहरंगेज था। और वो इसके साथ दोनों तरफ सजे लॉन के बीच सफेद रूपोश पर घेरेदार पीले रंग के पांव को छूते फ्रॉक में, खूबसूरत सीधे से दुपट्टा पिन्नों से सर पर सजाए, अपनी उंगलियां आपस में उलझे मजदरब सी होकर खड़ी थी। इससे सच में नहीं चला जा रहा था, डर लग रहा था। अगर खानदान के सब लोगों के बीच वो इस हिल्स में गिर गई तो सोचकर ही इसकी खूबसूरत बड़ी सी आंखों में नमी घुल गई। सामने ही वो ग्रे 4 पीस सूट में खूबसूरती से बुरे बाल सजाए, लबों में सिगार दबाए इसके सामने खड़ा था कि इसके पास से गुजरते लोग इन्हें रुक रुक कर देख रहे थे। खासकर सबकी नजरें सईद आलम की तरफ उठ रही थी, जिसके साइड चेहरे के निशान बुरी आंखें लम्हा महबूद कर देती। और इस पहाड़ जैसे वजूद के सामने खूबसूरत पीले फ्रॉक में हुर खड़ी हुई। कौन है? ये जमाल की बेटी है, अंधी, जो पास से गुजरती औरत हूर के गौर से देखती अपने साथ खड़ी लड़कियों को बताने लगी। पर इसके जुमले मुकम्मल होने से पहले ही आलम ने काफी गुस्से से घूरी डाली। वो हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ गई। हूर ने सुनकर काफी मुश्किल से तासुरात छुपाए, क्योंकि वो जानती थी आलम इसके चेहरे पर दुख के तासुरात देखेगा तब बहुत गुस्सा होगा और शायद इससे भी नाराज हो जाए, जो वो कतई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एनी प्रॉब्लम सर? इन्हें रुकते देखकर आलम का एक आदमी आगे बढ़कर आया और वो बहुत मुद्दम से पूछा। वो सर हिला गया। पर कैसे गुब्बारा करे इसकी शहजादी के सैंडल्स कोई और लाए? इसे कतई तौर पर पसंद नहीं था कि कोई इसकी चीज को छुए, कि जाए इसके सैंडल्स लाना। नहीं तुम जाओ, एक फैसला कर दे, इसने कहा। वो सर हिलाता पीछे हट गया। क्या तुम बिल्कुल नहीं चल सकती? तकलीफ हो रही है? इसके गाल पर हाथ रखते नरमी से हूर से पूछा। वो झट से सर हिला गई। मुझे तकलीफ हो रही है, पर मुझे डर भी लग रहा है। पाँव चलते वक्त ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वो अपने हाथ को दाएं बाएं करती बोली। वो समझता सर हिला गया। उंगलियों में दबा सिगार वापस मुंह में देते वो पंजों के बल रोश पर इसके कदमों में बैठा। जहां और की सांसें इसके यूं सबके सामने पाँव में बैठने पर थमी थी, वहीं सब लोग हैरत से शशदर देख रहे थे। इससे ज्यादा हैरत ज्यादा तो बेस्ट के आदमी थे, इसे यूं इतने लोगों के बीच बीवी के कदमों में बैठे देखकर। पाँव थोड़ा ऊपर उठाओ, वो बोला तो और होश में आई और एहतजाज करने लगी थी, पर सईद के पाँव पकड़ने पर फौरी इसके सर पर हाथ टिकाकर गिरने से बचने के लिए। सब देख रहे होंगे। इसके अपने पाँव से कैतन हील्स निकालते महसूस करती मिनमिनाई। क्या अब वो नंगे पाँव जाएगी अपनी बहन की माइयों में? इन लोगों को कोई काम नहीं, नागवारियत से कहते इसने पास नजरें उठाई और वह सब टपटाकर हैरत ज्यादा वहां से जाने लगे। आलम ने आहिस्ता से इसकी हील्स की एड़ी खींच कर निकाल दी। अब पहन कर देखो। दोनों एड़ी अपनी जेब में रखते हुए इसने वापस इसके पाँव में वो एड़ी बगैर एड़ी वाली हील्स पहनाई, जो अब फ्लैट की तरह बन गई थी। हाँ अब ठीक है, वो खुश हुई अपनी एड़ी जमीन पर देखकर। आई लव यू, इसने इनाम की सूरत सरगोशी में कहा, साथ ही इसकी पलके लर्जी। आलम ने मुतबस्सम नजरें इसके खिलते मुस्कुराते चेहरे को देखा, सरगोशी पे सर हिलाते इनाम कबूल किया और इसके हील्स की स्टेप लगाई। यू आर एडोरेबल, आई लव यू टू। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकालकर हाथ साफ करते सिगार मुंह से निकालकर दूसरी तरफ धुआं छोड़ा और अपना बाजू वापस इसके नाजुक कमर में डालते आगे बढ़ गए। आपने क्या कहा था? हूर उलझकर पूछने लगी। बाकी कुछ नहीं, पर इंग्लिश जरूर वो पकड़ लेती थी। घर चलकर बताऊंगा, अभी फंक्शन एंजॉय करो। वो मानकर सर हिला गई। तभी कमाल साहब और इनके साथ खड़े लोगों की इस तरफ नजर उठी। पल को तो वो साकित रह गए, दूसरे पल होश में आते इनकी जानिब लपके। वहीं बुरहान ने इसकी मौजूदगी पर नजरें फेर ली। अलबत्ता हुरुलैन की सुर्ख रंगत को कुछ ठटक कर जरूर देखा था। ये बेस्ट का कौन सा रूप था? वहां मौजूद इसके आदमी शस्त्र थे। वो कैसे इतने लोगों के सामने इतने बड़े स्टैंडर्ड स्टेटस वाला शख्स इस लड़की के पाँव में झुक गया? इन्हें याद था, अगर कहीं दूसरे ममालिक में मीटिंग के लिए गैंग इसे बुलाते थे तो इसका पहला जवाब इनकार ही होता था कि वो ना किसी के पास जाता है और ना ही किसी काम के लिए झुकता है। फिर ये क्या था? बेस्ट कोई मजाक या आम शख्सियत नहीं थी जो वो आसानी से कबूल कर लेते इस मंजर को। वो सब एक खौफनाक अपना वहम समझने लगे, क्योंकि इन्हें मालूम था बेस्ट नहीं झुकता बल्कि झुकाता है। सर ने मैडम के सैंडल्स की एड़ी अपनी जेब में रख ली। बहुत मुश्किल से हल्क से बरामद हुए ये अल्फाज। हाँ देखा, दूसरे ने सरगोशी में जवाब दिया, जबकि हैरत ज़्यादा बात पर। मैं तुम्हारा शुक्र अदा कैसे करूं मुस्कान, मेरी सगी भाभी। दाद ने अपना कोट पहनते
कपड़े दुरुस्त करते। ममनू आप दीदा होते इसके हाथ पर पुश्त अकीदत से बोसा दिया। वो सटपटा गई। अब छोड़ो एक्टिंग, जिंदा बच गए हो, चलो रस्म के लिए देर हो रही है। अपना हाथ छुड़वाकर इसने टोका। इसने नायत से आंखें पोंछी और दांत चौंक गया। हाँ हाँ चलो यार, मेरी बोनी जान इंतजार कर रही है, खफाना हो जाए। वो हड़बड़ाकर कहता इसे पीछे छोड़कर लंबे डग भरता निकला। आलिफ। मुस्कान साड़ी के आगे घेरे से उलझकर गिरने लगी। तभी बेसाख्ता से पुकारा, आ जाओ यार, देर हो रही है। वो जुलमत कहता वहां से गायब हो गया। मुस्कान होन की तरह इसे नजर से गायब होते देखती रह गई। अभी तो इतनी दुआएं मोहब्बत, बहन भाई भाभी माँ देवर आपका बेटा हो रहा था, और अभी वो गिरने वाली थी। पुकारा तो हौसला बढ़ाकर चला गया। ये सच में मासूम है या मासूम बनने की कोशिश कर रहा है? वो बमुश्किल अपनी साड़ी को ठीक करती वहां से निकली। लॉन में आकर इसे झटका लगा हुआ दांत भी हैरत से शशदर था। आलम को हूर समेत खड़ा देखकर वो जैसे खिल उठा और आगे बढ़कर आलम से बगलगीर हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों आए। वो हुरुलैन से मिलता आलम से खुशी से बोला। इसने समझते सर हिला हुआ गुस्सीली नजर वहां शरारत से मुस्कान पर डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कमाल साहब एक बार फिर बोले, आओ हुर, तुम्हें नूर के पास ले जाओ। आलम ने इजाजत लेते हुए वो हूर का हाथ पकड़े वहां से जाने लगा। मीसनी कहाँ है दाद? वो इससे मिलने के इंतजार में थी। वो आ जाएगा, तुम आओ। वो इस लेकर स्टेज पर झूले के पास आया। नूर। दाद के रुकने पर वो समझ गई कि अपनी बहन के पास है। वहीं दूसरी तरफ नूर सख्ते में सर उठाए हूर के आ जाने पर बैठी थी। मिलोगी नहीं मुझसे? तुम्हारी शादी हो रही है ना, जैसे मम्मा कहती थी। वो तुम्हारी शादी ऐसे धूमधाम से कराएंगी, तुम खुश हो नूर? मामा पापा बहुत खुश होंगे, है ना? वो कहने के साथ ही जब्त का दामन छोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। जहां दादी से रोने पर बुखलाया था, वहीं नूर रोती हुई उठकर इसके सीने से लग गई। हुरुलैन। वो इसके नकूश पर बोसे देती इसके सीने से लगकर दोनों रोने लगी। मामा पापा ने खुद तो कहा था हमारी शादी किसी शहजादों से कराएंगे, हमारे लिए कोई शहजादे आएंगे और हम दोनों को साथ ले जाएंगे। वो रोती हुई बड़बड़ाई। हूर ने मुश्किल ही इसके वजूद को संभाला। रोते नहीं पागल, हमारा दाद किसी शहजादे से कम है क्या? वो तुम्हें बहुत चाहेगा। हूर मुस्कुराती इसकी पीठ सहलाकर बोली तो नूर महज सर हिला गई। इससे क्या, मेरे बच्चे को रुलाकर बुरा हाल करूंगी। मुस्कान वहां आती दोनों को संभालने लगी। मीसनी। वो चहकी, इससे लिपट गई। मुस्कान ने नूर को भी अपने साथ खींच लिया। मामा मैं। फेरी अपना भारी जालीदार फ्रॉक संभालती मुंह सोरे बोली, ये तुम्हारा छोटा पैकेट है ना? वो हंसती पूछने लगी। मुस्कान ने भी हंसते हाँ कहा और हूर ने फेरी के लिए मोहब्बत से बाहें वाकी। फेरी के तो जैसे भाग खुल गए। वो इस हूर जैसी लड़की और अपने क्रश बेस्ट की बीवी की बाहें में देखकर या हो करती इनमें समा गई। फेरी आहिस्ता, दाद ने नरमी से टोका हुरुलैन की हालत को नजर रखते हुए। कोई नहीं दाद, ये बहुत प्यारी है। वो हंसकर फेरी के चेहरे पर उंगलियां फेरती इसके गाल पर किस करने लगी। स्टेज के नीचे कुछ देर पहले जब बहनों के प्यार पे आप दीदा थे, अब मुस्कुरा रहे थे। बहुत खूबसूरत है ना, कितनी हसीन है माशाल्लाह, अल्लाह ने फुर्सत से बनाया होगा इसे। हुरिया कहने बिना नहीं रह सकी। आसिया बेगम फीकी मुस्कुराहट से हंस दी। हाँ हसीन तो है, अल्लाह नजरें बद से बचाए। देखो सबकी नजरें टिकी हैं इस पर, नजर न लग जाए बच्ची को, कितनी मासूम है। आलिया बेगम ने भी सत्ताईश और फिक्रमंदी से हामी भरी। मुझे तो वो छोटी सी गुड़िया जैसी नूर पसंद है, कितनी क्यूट है, दिल करता है काट लूं इसे गालों पर। विशाल ने झट से अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की और हुरिया ने अपनी आपी को देखा। आपी क्यों ऐसे देख रही हो यार, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, बड़ी तो बड़ी, छोटी भी धमाका है। इसने आंख मारी। अल्लाह अल्लाह, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? धराब भाई को बताऊंगी। वो फौरन बोली। नौशी आपी आप बताएं कौन सी प्यारी है, हूर या नूर? नौशीन ने मुस्कान के पास हंसती झपटी हूर को देखा और अब निचला लब दांतों तले दबाकर दांत की मौजूदगी में घबराई बुखलाई नूर को। सच कहूं तो दोनों ही बेमिसाल हैं, बल्कि तीनों। वो जो इनके पास ब्लैक साड़ी में बुरहान भाई की बीवी खड़ी है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। सबने नजरें स्टेज की जानिब उठाई जहां मुस्कान के हिसार में हूर खड़ी थी, जबकि फेरी नूर और अपनी ममा का हाथ थामे हुई थी। इस इंतहाई खूबसूरत लम्हों को दाद ने अपने मोबाइल में कैद कर रखा था। आप कमाल, आपकी चॉइस कमाल, सुना है इसके बारे में? ऐसा बोलती भाई दोबारा सामने खड़ी नहीं रह पाएंगी। और मैंने तो रशीदा आंटी से सुना था, वो गई थी बुरहान भाई के निकाह पर, इतने मजे की दुल्हन है, शर्त 5-6 दफा निकाह पढ़वाया, फिर ब्यूटिशियन को बेड के नीचे छुपाकर खुद पैंट शर्ट में निकाह पढ़वाया। अनोखी दुल्हन है। फिर बोलती भी है मेरे को तेरे को।
बहुत मुश्किल से हंसी कंट्रोल किए। बाद में मिशाल हंसती नौशीन के हुरिया और आलिया बेगम को मुस्कान के बारे में बता रही थी। वो हैरान हुई। हाँ तो क्या हुआ, इसकी अपनी शख्सियत है। नौशीन फौरन बोली। लॉन में मौजूद हर औरत और लड़की के मुंह पर हुरू लैन की खुजर पुजर शुरू हो गई थी। वही वो अनजान अब अपनी बहन को झूले में दांत के साथ बिठाने लगी। तुम नाराज तो नहीं होना? सबने नजरें बचाकर इसके दुपट्टे के अंदर इसके हाथ को पकड़े हुए बोला। नूर घबरा गई। ये क्या कर रहे हो दाद, सब देख रहे हैं। वो कुछ फासले पर खड़ी मुस्कान और हूर को देखती अपना हाथ छुड़वाने लगी, पर दांत ने उल्टा मुस्कुराते इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी और अपनी चौड़ी हथेली इसकी छोटी गुलाबी हथेली से मिलाते पुष्ट को अंगूठे से सहलाया और इसकी सांसें उखड़ गईं। चेहरा दहककर जैसे लहू टपकाने लगा। इसे जहमत छोड़ दी। नाराज हो? गमगीन लहजे में सरगोशी से पूछने लगा, जबकि अब उंगलियों को आजाद करके इसे बेजान हाथ की नब्ज से सहलाई। नूर हलक तर करती इसके लम्स पर सर झुकाए आंखें मीचे बैठी थी और तब मजीद सिमट गई जब दुपट्टे के अंदर इसका बाजू इसकी कमर के गिर्द लिपट गया। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो बोनी, वो मध्यम आवाज में बोला। पर वो कहाँ जवाब देने वाली थी। मज़ाहमत करना भी चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर पाई। प्लीज दाद, इसके लम्स पर वो कसमसाई। नाराज हो बोनी? इसे कुछ मजीद अपनी तरफ खिसकाते बोला। नूर सांस रोककर नफी करने लगी। नाराज होने के लिए वजह चाहिए, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं, बल्कि शुक्रिया दाद करना चाहती हूँ मेरे दिल के करीब वजूद को यहाँ लाने के लिए। तंग आकर दबी आवाज में बोली। दाद चौंका और फिर हंसती हूर को देखकर खुद भी मुस्कुराया। ओहो शुक्रिया मेरी बोनी। वो खुश हुआ था और आहिस्ता से हाथ इसकी कमर से निकाला। नूर ने गहरा सांस भरकर फासला कायम करना चाहा। इसी वक्त फिर से आहने बाजू हायल हो गया। नहीं कर रही? थक कर वो बेबसी से बोली और हंसा दिल आवेजी से। मर्द हजरा सब डाइनिंग रूम में बढ़ गए थे, जहां आलम के सामने बुरहान भी अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ ब्लैक 3 पीस में सूट में मलबूस था। आलम की सारी तवज्जो हैन की तरफ थी, जबकि कान में लगे आले से वो इसकी सारी बातें मुस्कुराहटे सुन रहा था। वहीं बुरहान इसके चेहरे पर मौजूद सुर्ख स्वेट रंगत पर इसके नीले निशान के रंग देख रहा था, जैसे किसी ने काटा हो इसे, और कलाई पर भी सुर्ख जली हुई स्किन, जैसे इसके टुकड़े को आग लगा कर जलाया गया हो। वो पूरी तरह इसकी जात की पहेली में उलझा हुआ था। रस्म का आगाज हो चुका था। पीले सुर्ख फूलों से सजे झूले में बैठे दाद और नूर की बारी बारी सब हल्दी लगाने लगे। हूर मुस्कान के साथ आकर नूर को लगाने लगी। जहां हूर की आंखें नम थी खुशी से, वहीं नूर की जगमगाने लगी। हूर कल परसों आओगी ना? नूर ने उम्मीद से पूछा। वो हंसी। जरूर मेरी जान, तुम्हारी शादी है और हूर ना आए? इसके गालों पर हल्दी लगाते वो बोली। मुस्कान ने नूर को तो सही लगाई, पर दाद के पास आती वो हाथ पूरा बढ़ाकर इसके मुंह पर मल चुकी थी। दाद का हल्दी से भरा मुंह देखकर फिजा में भरपूर कहके गूंज उठे। ये कहके किसी और के नहीं, इसकी दोस्तों के थे जो कुछ फासले पर ही बैठे थे। और जालमो, हमारी बारी कब आएगी? उन्होंने हाँक लगाई। वहां सब हंस पड़े। आ जाओ फिर बताता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। इसने मुस्कान के सिम देखकर इन्हें जताया। सॉरी, पर मैं आज कोई झगड़ा करने के मूड में नहीं। मुस्कान ने फौरन हरी झंडी दिखाई। वो साकित रह गया। मुस्कान, पर वो इग्नोर करती हूर फेरी का हाथ पकड़े वहां से निकली। दाद की हालत काटो बदन में लहू ना हो जैसी हो गई थी। वहीं जिशान फहद वाला ने कहके लगाए। शोर शराबा अरूज पर पहुंच गया। तकरीब पूरे जोरों शोरों पर चल रही थी। यहाँ दाद का मुंह समेत पूरा वजूद हल्दी था, तो जोरदार चीखे दुहाइयां मार रहा था। इतना खूबसूरत है कि देखते पलके न झपकाए। हाँ, कुछ डर लगता है, पर इसे जिस टेबल पर फेरी के साथ मुस्कान बैठा कर गई थी, पास ही आवाज आई। अच्छा, दूसरे की हैरत भरी आवाज आई। हाँ, आया है, बैठा है अंदर, देखा अभी इसके पास आएगा, देख लेना। इस लड़की को जैसे मालूम हो, वैसे बीवी कम नहीं, इतनी हसीन अल्लाह किस्मत वाले को देता है। ये तीसरी की आवाज थी। वो टेबल पर सर टिकाए खामोशी से सुनने लगी। हुस्न का क्या करे बंदा जब वो किसी काम का नहीं। ये कोई औरत थी जो कहती मायनी खेजी से हंसती थी। क्या मतलब? दूसरी उलझ गई। मतलब क्या भाई? हुस्न को घूट भर कर पिएगा। सुना था ये मनहूस थी, अपने यार के साथ मिलकर माँ बाप को मरवाया था, फिर इसके साथ भाग गई और कई साल गायब रही। यहाँ उन्होंने पूरा पाकिस्तान एक कर दिया था, पर इसके यार ने तो पता नहीं कौन से कोने में छुपाया था, इसे मिल ही नहीं पाई। और फिर सालों बाद हाथ आई। एक अस्पताल में लावारिस पड़ी मिली थी बुरहान को। तभी थोड़ी न इतनी हसीन थी, हड्डियां रह गई थी जिस्म में। सुना था इस यार ने अपना मतलब निकालकर दूसरे आदमियों के हवाले कर दिया था। फिर उन्होंने इसे बेदर्दी से काट छाट कर बिल्कुल मर्दा बनाकर रास्ते पर फेंक दिया। फिर इन्हें तजस्सुस हुआ और आंखें नीचे दर्द से सुन रही थी इस अनजान दास्तान को। क्या कोई इसके दर्द और गम का अंदाजा लगा सकता था? इस वक्त वो मनहूस है। इसने अपने माँ बाप को मरवाया,
महीनों बाद इसके दिमाग में वही चीखें जहर घोलने लगा। सारे वजूद पर जैसे चूंटियां चुभने लगी। इसके जख्मों से बहता खून चूसती वो कोई मेहरबान हाथ इन्हें नोचकर दूर फेंक रहा था। अबे क्या हुआ? फेरी परेशान इसके मुंह से निकलती टेबल पर सफेद झाग और आंखों से बहते रवानी से आंसू देखकर घबरा गई और हुरैन की बोझल होती पलकें देखती खौफजदा हो गई, जबकि वो तो खुद इस जहन्नुम में महसूस कर रही थी। वो इस मुंह के बल जमीन पर लेटा इसकी पीठ पर खंजर की नोक से इसकी सफेद स्किन को काटने लगा था। आलम, वो अपने हाथ पांव सुन करती बड़बड़ाई। इसे याद था रोज की तरह आज इसने दवाई खाई नहीं थी, बल्कि जुबान के नीचे छुपाकर फिर आहिस्ता से थूक दी थी, सिर्फ आलम को दिखाने के लिए। अब वो ठीक है बिल्कुल। एन दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में बैठा आलम औरतों के बातें, शोर और गला सू की आवाजें कहकों के बीच कुछ कुछ सुना, झटके से बड़बड़ा कर उठा। इसकी आंखों में जैसे लहू उतर आया और लंबे लंबे डग पड़ता सबको वहां हैरान छोड़कर भागा। क्या हुआ? ये अचानक क्यों चला गया? कमाल साहब भुखलाकर खड़े हो गए। चलो देखते हैं। वहां सब इनके पीछे लपके। मामा, पापा, भाभी को पता नहीं क्या हो गया। पहली रोती हुई भागती मुस्कान के पास आई, जो नूर को रूम में छोड़कर आकर अब आसिया बेगम की हदायत सुन रही थी। क्या हुआ इसे? मुस्कान हाथ में मौजूद हल्दी वाला थाल वहीं पहनकर भागी। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया? लड़की मर तो नहीं गई होगी ना? फिर क्यों मेरे बेटे की खुशियों को खराब कर रहे हो? इनकी नागवार पर बड़बड़ाहट गूंजी और झुककर थाल वापस समेटने लगी थी। फेरी इन पर एक नजर डालती वापस भाग गई। एन शहजादी! वो इसके पास पहुंचता इसका वजूद एकदम बाहों में भरकर इसे सीने से लगा गया। आलम चलो! वो मुंह इसके कोट पर साफ करती बड़बड़ाई। हुरुलैन! मुस्कान बुरहान दांत भागते इसके पास पहुंचे और सईद के आगोश में इसका वजूद देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ? सब ठीक है? मुस्कान ने हिम्मत करते पूछा। शट अप! वो अचानक हलक के बल दहाड़ा। क्या हर किसी का दिल सहम कर कांप उठा। सब खौफजदा होकर इसकी आंखों में सुर्खी देखते पीछे होने लगे। यहाँ आओ तुम! बेहोश एन के पीठ सहलाते इसने मुस्कान को पास बुलाया। बुरहान चौंका। क्या कहना है मुझसे? कहो। इसने मुस्कान का बाजू पकड़कर खुद को आगे किया। इससे कोई भेद नहीं था वो इसकी बीवी को मार रख। सईद ने कहर भरी नजरों से मुस्कान को देखा। दांत इसके रुके कदम देखकर दांत पीस गया। बोलो! वो बुरहान का बाजू झटक कर इसके सामने आ गई। तभी सईद ने बगैर फेरी को सीने से लगाए खड़े बुरहान को शॉक्ड सुर्ख चेहरे को देखे और दूसरे तरतर कामती 3 लड़कियों और एक औरत को देखा। वहां सब जमा हो गए थे। हर कोई आंखें फैलाई से देख रहा था, जो बिगड़ा पड़ा खड़ा था। सजा दो इन्हें इनके दिमाग के हिसाब से। इसके दिमाग में बड़ी स्टोरीज के स्टॉक को निकाल दो बाहर और भेज दो इन्हें लॉकअप में। उन्होंने सईद आलम की बीवी की जान लेने की कोशिश की है। सख्त खूनखार लहजे में कहता हुआ वहां से निकला। इनके पीछे गार्ड्स भागते गए। इस फैसले को सुनते सारे माहौल पर सख्ता छा गया, जबकि खूनखार नजरों से मुस्कान भिपरी इन चारों को देख रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बुरहान इसके बीच आया। ये मेरा जाती मसला है, इस भी तुम बीच में नहीं आओगे। उन्होंने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। वो खुर्राई और झटके से अपने वजूद में से छुपा पिस्टल निकालकर सबको वहशत से ज्यादा छोड़ती इन तीनों लड़कियों और औरतों को बाहर चलने का इशारा दिया। अगर तुम इन्हें लेकर गई तो फिर यहाँ नहीं आओगी। मैं तुम पर केस करूंगा अगर तुमने इन्हें कुछ किया तो। बुरहान सख्त लहजे में बोला। कुछ पल तो मुस्कान सुन रह गई इसकी बात सुनकर और दूसरे ही लम्हे दाढ़ी। चलो, वरना यही सारी गोलियां खोपड़ी में डाल दूंगी। इसकी गुराहट सबके कान सुनकर गई। यकायक हंसी खिलखिलाहट से वहां वहशत फैल गई और घसीट कर इन चारों को गन पॉइंट पर ले गई। मिशाल, नौशी, आलिया बेगम, हुरिया सब अनगश्त बतनदा थी। आसिया बेगम खुद सकते में पीछे खड़ी है, सब देखती रही। सबके मुंह से जैसे जुबान निकल गई। फिर ये अनजान सहमी बुरहान की गर्दन में मुंह छुपाए रो रही थी। दांत सर झटका आलिया बेगम वालों की जानिब मुतवज्जो हुआ। माजरत आंटी, आपको सबको ये फेस करना पड़ा। इसकी बात पर वो क्या कहती खामोश थी। इनके सामने भी रोती बिलखती औरतों को वो लड़की लेकर गई थी, क्या कह सकती थी वो। चलें। दराब सफिया ने इनसे कहा तो वो फौरन हरासा सर हिलाकर इनके पीछे हुई गाड़ियों की तरफ, यहाँ तक कि आसिया बेगम से मिलना भी याद ना रहा। इस लड़की मुंह से बहती सफेद झाग इनकी आंखों के सामने थी, जैसे इसने जहर खा लिया हो या किसी सांप ने डंक मार लिया हो। वैसी ही तो पीली पड़ रही थी वो। मैंने कहा था ना नजर लग जाएगी बच्ची को। सब घूर कर देख रही थी। आलिया बेगम ने अतल कुर्सी पढ़ते कहा। नहीं मामा, वहाँ बहुत कुछ कह रहे थे इसके बारे में किसी। ऐसा कुछ नहीं, वो बस किडनैप हो गई थी। सफिया ने बात काट कर कहा और हुरिया लब भेज गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसकी कितनी हसीन लग रही थी, मुस्कुराती हंसती। 2 मिनट में क्या हाल बना दिया बच्ची का। और वो लड़की तो कितनी खतरनाक थी। बुरहान भाई की नहीं सुनी, घसीट कर ले गई इन्हें। अब क्या होगा? विशाल परेशान मुस्तरब सी बोली।
कुछ नहीं, अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाएगा, राव ने नरमी से कहा और सब सर हिला गई। मेहमान गिचम गोइयां करते आहिस्ता से रुखसत होने लगे। बुरहान फेरी को अपने रूम में सुलाकर मुस्कान के पीछे जाने वाला था, जबकि दादीन के घर में जाते ही मुंह धोकर वहां से गाड़ी निकाल कर भागा। ये सब इसी की वजह से हुआ था। अगर वो किसी को ना बताता आलिम की इजाजत ना देने वाली बात, तो आज ये सब कुछ ना होता। जानता भी था इसका इलाज चल रहा है, इसे खतरनाक जहर दिया गया था मारने के लिए, जिसके दिमाग तक असर कर चुका था, आधे जिस्म पर फैल चुका था। फिर कैसे वो सबकी जान की इतनी बड़ी गलती कर सकता था। आप जाएं, सो जाएं सिमी जी, आलम को आने में देर हो जाएगी। वो अपने लिए कॉफी का कप और इसके लिए चाय बनाए ट्रे में लेकर लाउंज में आया। सिमी ने पहले इसे फिर टेबल पर रखे चाय के कप को देखा। फिर ये क्यों लाए हो? इसने तीखे चितौन से पूछा। आरिफ मुस्कुराया और उसके चेहरे को देखा। मामला सारा ये है कि मैं कहूँगा आप जाएं, आराम करें। फिर आप हीरोइन की तरह कहेंगी नहीं, मैं इनके आने तक तुमसे बात कर लेती हूँ, तब आप मुझसे मेरा तारुफ पूछेंगी और मैं अल शरीफ बंदा अपनी पूरी अल शराफत वाली जिंदगी आपके सामने खोल कर रख दूंगा। पहले आप मुझ पर तरस आएगा कि बगैर माँ बाप के बच्चे का ये हाल, इसके बाद अल रहम। फिर दिन गुजरेंगे, आपको मुझसे अल अपनायत का एहसास होगा। मेरी नजरों के सामने ना होने पर आप अल फिक्रमंदी हो जाएगी। अल रूम में वल बेचैनी सी होने लगेगी। आप यूं ही मुझे अल सोचते मेरे लिए हर रोज कुछ बना कर रखेंगी। फिर आपको फील होगा मेरा यानी माँ बदौलत का आपकी अल मुबारक जिंदगी में होना कितना जरूरी है। इसके बाद अल आरिफ वल आरी से सम्मी जी आपको मोहब्बत हो जाएगी, और जब ये राज खुलेगा तो आप अल नाराज होंगी खुद से। इसके बाद हैप्पी शुरुआत। मैं तबस्सुम नजरों से इसकी फैली आंखों को देखता टांग पर टांग चढ़ाए, एक बाजू सोफे की पुश्त पर टिकाए, दूसरे हाथ में ब्लैक कॉफी का कप पकड़े वो छोटी चुस्कियां लेने लगा था। और ये सब खाली दिमाग पेट से नहीं होगा, सिर्फ बंदा ही खर्च होगा, इसलिए चुस्कियां भरें और आपके सामने मौजूद अल शरीफ बंदे का तारुफ पूछना शुरू करें। सिमी ने इसकी सारी बकवास पर दोनों हाथों में सर गिरा लिया। अरे मैं रिलैक्स बैठा शरीर नजरों से इसे देख रहा था। इसके हाथों में सर देकर हड़बड़ा गया, फौरन सीधा हुआ। क्या हुआ सिमी जी, आपके सर में दर्द है? इसने कप टेबल पर रखा और उठकर इसके पास आना चाहा कि सिमी ने हाथ उठाकर इसे वहीं बैठने का इशारा दिया। वो सर हिलाता बैठ गया और परेशान मस्तरब होकर इसे देखने लगा। कौन ना मर जाए इस मासूमियत। वो तड़क कर तंजिया बोली, नहीं नहीं प्लीज आप ना मरे, मैंने बड़ी प्लानिंग की हुई है फ्यूचर की सिमी जी। वो मचल उठा। सिमी का दिल किया सामने रखा कप क्रिस्टल वॉश इस दिमाग से हर इंसान के सर पर मार दे। सोचे मत सिमी जी, मैं मोहब्बत की शुरुआत समझकर कबूल कर लूंगा। इसने फौरन कहा। सिमी घबरा गई, भला इस लड़के को कैसे मालूम वो क्या सोच रही है। पर सामने कि अपने चेहरे पर शहद रंग सुकड़ी नजरें देकर वो पल को घबरा गई। बेसाख्ता ही पहलू बदला। एक तो इसका जी इंसान को जिच कर देता था, सिमी बहन भी तो कह सकता था, या आपी। वो इसे देखने से भी गुरेज करती थी। सोचने लगी। दूसरे ही लम्हे वो अस्तगफिरुल्लाह, सिमी सच्ची में बौखला गई। कुछ पल खामोशी से इसकी चुस्कियों की आवाज पर गुजार गए। तुम्हें अरबी आती है? वो तंग आकर बोली। आरिफ दिलचस्पी से मुस्कुराया। तारुफ की सीढ़ी नंबर 1। इसके दिल में गुदगुदी होने लगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ लिख नहीं पाता, ना ही पढ़ पाता हूँ और ना ही समझ पाता हूँ, बाकी बोल अच्छी लेता हूँ। वो मुस्कुराकर सच्चाई से बोला। फिर इसके तासुरात जानने के लिए लबों से कप लगाकर आंखें सुखेड़ ली। ना लिख पाते हो, ना ही लिखा पढ़ पाते हो, बल्कि समझ भी नहीं पाते, तो बोल कैसे लेते हो? वो हल्का सा हंसा, जिस पर जैसे इसकी शहद रंग आंखें मुस्कुराईं। सिमी उलझन से इसके चेहरे पर नजरें नहीं डाल पा रही थी। वो इससे इस कदर बड़ी होने के बावजूद भी नर्वस हो रही थी, और ये सारा कसूर इसकी सुकड़ी रूह को जांचती नजरों से उलझती शरीर शहद रंग नजरों का था। इसमें कौन सी बड़ी बात है सिमी जी? आपने अपने अल शरीफ अल आरी को समझा ही नहीं। चलें एक लफ्ज बता देता हूँ, मुझे जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू तेरी सांसों की, मेरी प्यास हो तुम। मतलब? सिमी ने लब दबाकर गुस्से सुर्ख अनारी चेहरे से पूछा। वो बहुत नहीं तो थोड़ा कुछ समझ लेती थी अरबी को, और फिर इसमें लिखे लफ्ज वाज़ेह बदतमीज जुमला वो कैसे नहीं जान पाती। सिमी जी, मतलब मैं कैसे बताऊं? मैंने आपको पहले ही बताया है, मुझे इनकी समझ नहीं आती। वो मासूमियत से बोला, वरना अंदाजा नहीं था कि वो समझ जाएगी। आज तो डबल तहज्जुद पढ़ने पड़ेगी। झूठ जो इतना बोल लिया है, वो खुद ही सोचकर शर्मिंदा हो गया। सिमी जैसे इसकी घूरती समझकर वो सच में इससे अनजान था। इसने गहरा सांस भरा। ऐसे नहीं बोलते, किसने बताया तुम्हें ये? अब वो एतराज उठाने लगी। फूल आरिफ के दिल पर बरस पड़े। वो सिमी जी, मेरे दोस्त ने, आपको तो मालूम है मुझे समझ नहीं आती, तो इसने बताया और मैंने आपको सुना दिया। क्या गलत बात थी?
वो मायने की इस मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसकी आंखों में झांकने लगा। सिमी घबरा गई। नहीं मतलब अच्छा था, हाँ सही था, गलत नहीं था, बस तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, वो भी मेरे सामने, समझ गए? वो इसके अचानक आंखों में देखने पर अपनी बौखलाहट छुपाए सिर्फ इसकी सोच, गलत सोच को झटकने के लिए वो सही कह गई थी, वरना वो जानबूझकर इससे ये बोलता तो वो इसका कीमा बनवा देती आलम के हाथों। अच्छा फिर तो मुझे बहुत पसंद है ये। कितना प्यारा इजहार लफ्ज है। वो खाली कप रखता अब सीधा होकर बैठा तो सिमी मजीद घबरा गई। इसका दिल क्या बता दे कि लफ्ज नहीं अल्फाज हैं, वो भी नाकाबिले कबूल, पर वो इस दिमाग से हर इंसान को क्या समझाती जो बगैर मायने मतलब जाने ऐसे बोल गया था। इसके तो सोचकर ही पसीने छूट गए थे। अच्छा और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है सिमी जी? हाँ, और जो अपनी सोचों में थी चौंक कर देखा। कौन कौन सी जुबानें आती हैं आपको सिमी जी? और फिर से दोहराने लगा अपना सवाल और सिमी जी में जज्बात डालते पेचो ताप खाती रह गई। जी नहीं, सिर्फ उर्दू और इंग्लिश और थोड़ी सी अरबी आती है। इसने सरसी से जवाब दिया और चाय के कप को उठाया, वो ठंडी हो चुकी थी। लाई मैं गर्म करके लाऊं? आरिफ ने इसके जवाब सुनकर शुक्र किया और इससे कप लेना चाहा तो सिमी ने इनकार कर दिया। मेरा पीने को दिल नहीं चाह रहा था, ये तो बस ऐसे ही सामने रखी थी, रिस्क है तो इसने वजाहत दी। हाँ तो रिस्क को वापिस ऐसे छोड़ देना भी तो गुनाह है जब वो आपके हिस्से का हो और आप ऐसे ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता। आप लाए मैं गर्म करके लाता हूँ। इसने कहने के साथ इसके हाथ से कप ले लिया। सिमी ने फौरन ही शहद रंग आंखों के करीब देखने से सर घूम लिया। आरिफ इसके ऐसे गुरेज पर हल्का सा हंसकर वहां से निकला। रिमशा सोई हुई है। खामोशी से उकताकर इसने सवाल किया। जी वो जल्द ही सो जाती है और फिर दोबारा के बाद उठकर बाहर बैठती रही अकेली। वो अपने लिए भी कप ले आया था, दूसरा ब्लैक कॉफी का। तुमने अभी वो भरा हुआ पिया था? सिमी पहले कप फिर इसके गुलाबी लबों को देखकर टोके बिना ना रह पाई। इसके बिना गुजारा नहीं, जो समझ ले गर्लफ्रेंड है मेरी। गहरा सांस भरते वो बोला। रात रात भर मशीनों के साथ बैठकर सर खपाने के साथ साथ ये ब्लैक कॉफी ही तो थी जो इसका साथ देती थी इस हाल में। ये भी कोई बात हुई भला? अब तुम खाने पीने वाली चीजों से भी ये रिश्ते रखोगे? मतलब हद है आरीपन की। वो बड़बड़ाई और चाय पका कप मुंह से लगाया। चाय की तारीफ के लायक थी पर वो नहीं कर पाई। इसे मालूम था इसका कुछ कहना होता और वो फौरन फैल जाता। शुक्राना, वो मुस्कुराकर बोला। सिमी गहरा सांस भर कर रह गई। इस बंदे से कुछ छुपा भी है कि नहीं? तुम फेस रीडर हो या नॉवल रीडर? इसने कोफ्ते से छोकर पूछा। आरिफ हंस पड़ा। मैं मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ, लापरवाही से कहता वो इसके तासुरात से महसूस हो रहा था। सिमी ने चौंक कर इसे देखा। तुम आ रही हो? वो तड़क कर बोली। शुक्राना, वो धुबधु बोला। तब सिमी को एहसास हुआ इसने दिमाग नहीं साथ जोड़ा। तुम दिमाग से आ रही हो? वो फौरन बोली। शुक्र दिल तो है, मैं चलता हूँ इसी पे हूँ। दिमाग से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं। बकवास मत करो, आलम को कॉल मिलाओ, पूछो इतनी देर क्यों हो गई। और टाइम देखती बोली। आरिफ चौंका और सीधा होकर बैठा। मेरी मिजाज हो, कॉल करके पूछो कब आएंगे खादिम की क्या औकात सिमी जी। वो आलम को डिस्टर्ब करने से जल्दी इनकार कर गया था। तुम कॉल करो, मैं खुद बात करती हूँ, इसने अटल अंदाज का देखकर कहा। वो सारी हिलाता अपना मोबाइल जेब से निकालकर आलिम को कॉल करने लगा कि नागिन कॉलिंग देखकर सिमी ने एक्सक्यूज करता साइड हो गया और हुरूलैन का पूछ रही थी पर वो तो आए भी नहीं थे। आरिफ ने उलझकर पूछा क्या हुआ हूर को? तब मुस्कान ने से बताया जिसे सुनकर उसके खुद तैश में आ गया था। इससे बात करके जो मालूम हुआ इसने जल्दी आलम को कॉल की। दूसरी कॉल पर अटेंड करते ही आरिफ को परेशान आवाज गूंजी। कहाँ है आलम? हुरूलैन कहाँ है? इसकी तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है, ड्रिप लगी है, खत्म होते ही पहुंच जाऊंगा। सिमी सो गई? आरिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते गहरा सांस भरा। नहीं, वो आपके इंतजार में बैठी है, आएंगे फिर सो जाएगी। इसने सामने गुस्से से घूरती सिमी को देखकर मुस्कुराहट दबाते कहा। अच्छा इसे दो मोबाइल। आलिम ने सर हिलाते कदम सिमी की तरफ उठाए। ये ले, आलम आपसे बात करना चाहता है। इसने मोबाइल अपनी हथेली पर रखते पेश किए। सिमी पल में समझ गई। यहाँ रखो। इसने दांत पीसकर सामने टेबल की जानिब इशारा दिया। आरिफ कंधे उचका गया। बज़ाहिर तो मुस्कुराते मगर अंदर से टूट फूट का शिकार होते मोबाइल रखा। कितना सोच लिया था इसने। वो जब मोबाइल उठाएगी तो इसके नर्म हाथों के पोर इसकी हथेली को छूकर लकीरों को नायाब कर देंगे, पर जालिम का दिमाग इससे भी ज्यादा चलता था। अपनी तो साली किस्मत ही खराब है। बहन थी वो दुश्मन साबित हुई। जिसे बीवी बनाना चाहता हूँ वो बहन बनने के लिए मचल रही है। अब इतना भी बदसूरत नहीं, अच्छा खासा खूबरू मर्द हूँ। अपनी क्लीन शेव हल्की मूछों पर हाथ फेरता वो शिकवे करती नजरों से सिमी को देखने लगा जो आलम की कोई बात सुन रही थी। सर झटक गया। आलम के समझाने के वो काफी लेट आएंगे इसलिए वो सो जाए, सुबह नमाज में मिलेंगे। सिमी तो इन्हें देखकर सोना चाहती थी पर भाई का हुक्म भी आंखों पर था। कुछ इस हद से ज्यादा शरीफ बंदे की बातों से भी पक गई थी, इसलिए हामी भर ली।
अब मुझसे नाराज हैं? वो जब मोबाइल टेबल पर रख रही थी, आरिम ने उठाते पूछा, नहीं भला मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? हाँ, सिर्फ बुरी बातें सोचना छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो कहकर चादर संभालती सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई और आरिम पीछे मुंह खुल गया। क्या मैं इसे नर्सरी का बच्चा लगता हूँ? या अल्लाह! इसने तो सदमे से बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और ऊपर देखा। मैंने जितने लड़कों के तो दो दो बच्चे होते हैं और एक मैं ही हूँ, इन्हें बच्चा लगता हूँ। लगता है मुझे मूंछें बढ़ा देनी चाहिए, फिर तो इन्हें एहसास होगा मैं शादी के लायक अच्छा खासा जवान मर्द हूँ। वो झपट कर मोबाइल उठाते बड़बड़ाता एलईडी के ऑन करते सोफे में धंस गया। अब इसकी सारी सोचें मुस्कान और दाद की तरफ थी। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वही हूर शुक्र था इसे कुछ नहीं हुआ। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।